start. We can start, है ना? Question 7. Just in the previous class we have completed up to the question 6. Now very simple questions. See, 2-3 questions are from exercise 3.1. So question 7. Find the value of A, B, C, D from the equation. This. It is an equation. It is called equation because so matrix having some constant as an element is equals to a particular matrix. So in this case we can find the value of that constants because there are two matrix, they are equals. It is matrix equation called. Okay. Also maybe ये general variable matrix type equation is also there, but in these questions two matrices are equal, one matrix having constants combination. So for finding the constants we have to equate the corresponding elements. Since whenever two matrices are equal and same order, then corresponding elements of the matrix are equal. So we can find the value of ABC. We can find the value of ABC, just one line you have to write. If two matrices are equal, then their corresponding elements are equal. So here what क्या होना है इसमें? A minus B equals to -1. So we are starting by taking this question. A minus B equals to -1. 2A plus C equals to 5. 2A plus C equals to 5. Just corresponding elements position wise equate. 2A minus B equals to 0. 2A minus B equals to 0 and 3C plus D equals to 13. 3C plus D equals to 13. So these are the equations we get by equating corresponding elements. Equating corresponding elements of equal matrix. Equal matrices. Okay. Now solving this two, you can solve ना, ये दोनों को solve कर सकते हैं by subtracting, because these two by subtracting means from this equation you can subtract this. Okay, so just write equation 1, equation 2, equation 3, equation 3, equation 4. Okay, so what? Equation 2 minus 1 gives what? 2 minus 1 gives A equals to this minus this equals to 1. Equation 2 gives or 1 gives what? Means क्या किया? इससे इसको माइनस किया तो A की वैल्यू 1 आ गया. A B cancel, minus minus plus 1 and A equals to 1 is here. Then B equals to what? 2. B equals to 2 and equation 3 gives what? Equation 3 A equals to 1, A equals to 1, C equals to 3 and equation 4 gives, means here C and D, C equals to 3. So put here 3. 3 into 3 9. D equals to 13 minus 9. D equals to 13 minus 9. 4. So these are the values. Okay, A, B, C, D. A, B, C, D are the 1, 2, 3, 4. So how can we get the values in this case? Just main thing is that equal matrix should have corresponding elements are equal. So equating corresponding elements of equal matrices, we can get this 4 equation, and solving this 4 equation we can get A, B, C, D. Okay, so these are the values of A, B, C, D. Same type of question, I think next question also. 7 question हो गया ना? Question 7, and then objective question is there.
Tell me answer. What will be the answer of this question? Anyone? Hello? Hello? Tell me answer of this question. Because for a square matrix, number of rows and columns are equal. So here m and n are number of rows and columns. So here m equals to n. C is the option. C is right. For a square matrix, m equals to n. Okay, C option is right. Very simple, na? Same question 8. After solving, we have to give the answer. Okay, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? There are two matrices. You can see in two matrices having some variables just like x, y. So these two matrices should equal for which value of x, y? x, y की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल होना है? We have to give its answer by analyzing. Okay, analyze करना है ना पहले. So see, for this question objective answer will be, answer इस पे डिस्कस करके देना है ना. So two matrices should be equal. When? क्या होना है यहाँ पर? देखो ये यहाँ पर by comparing objective question है. So try 3x plus 7 equals to what? 0 and 5 equals to y minus 2. 5 equals to y minus 2 and y plus 1 equals to 8. Y plus 1 equals to 8 and 2 minus 3x equal to 4. 2 minus 3x equals to 4. But just after solving you have to give the answer which is the correct answer. इसको solve करना है और value निकालना है. Clear है? So यहाँ से x की value क्या आएगा इस equation से? X equal to minus 3 by 7. From this equation x equals to 3x plus 7 equals to 0 means x equals to minus 7 by 3. Sorry, minus 7 by 3. Okay, इस क्वेश्चन से क्या आएगा? y equals to 7 और यहाँ से आना है y equals to 7 और यहाँ से आना है x equals to what? क्या होगा यहाँ से x की वैल्यू? माइनस 2 by 3. x की वैल्यू माइनस 7 by 3. x equals to minus 2 by 3. So these two value are differ. ये दोनों जो वैल्यू है ना ये डिफर कर रहा है, यूनिक वैल्यू नहीं है. ये दोनों वैल्यू यूनिक नहीं है. देखो यहाँ से x की वैल्यू इतना आ रहा है, यहाँ से x की वैल्यू इतना आ रहा है. बट यहाँ देखो y इक्वल टू 7 है, y इक्वल टू 7 है. ओके, बट x की वैल्यू यहाँ पर देखो और x की वैल्यू यहाँ पर देखो. दैट मीन्स व्हाट? व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ये दोनों यूनिक नहीं है. तो आंसर कौन सा होगा? बी आंसर. नॉट पॉसिबल टू फाइंड. ओके, सो बी विल बी द आंसर. सिमिलरली one more question, I think objective 10, question 10. The number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1 is. कैसे करना है इसको? हेलो, 3 by 3 matrix we have to make. ये matrix we have to make 3 by 3 means 9 elements will be there. Okay, so 9 पोजीशन है ना, 1 2 3 ऐसे 9 पोजीशन. So यहाँ जो elements है, these are the elements 3 by 3. So you have to fill this position. You have to fill this position by either 0 or 1. So permutation, number of permutation to fill one element. क्या होगा इस जगह को फिल करने का? हाउ मेनी टेक्निक्स आर देयर? कितने वे हाउ मेनी वेज आर देयर? आइदर 0 और 1.
इसी से फिल करना है। 9 पोजीशन आर देयर, 3 by 3 मैट्रिक्स बनाना है। एक पोजीशन को फिल करने के लिए 2 एलिमेंट्स आर देयर, 0 और 1। सो एक जगह को फिल करने के लिए कितने परम्यूटेशन होंगे? वेज तो होता है ना। फॉर 1 प्लेस देयर विल बी हाउ मेनी वेज? एक जगह फिल करने के लिए कितना पोजीशन होगा, नंबर ऑफ वेज होगा? अपने पास 0 है या 1 है? सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना 11th में। वैसे भी फिल करना है, इस जगह को फिल करना है आइदर 0 से या 1 से। हाउ मेनी वेज आर देयर? कितने वेज हो रहा है? हेलो, टेल मी, कोई तो बोलो। इस जगह को फिल करना है, 2 नंबर है 0 और 1, तो 2 पोजीशन 2 वेज आर देयर। एक जगह के लिए 2 है तो 9 प्लस के लिए कितना होगा? 9 प्लस के लिए 2 पावर 9, 9 प्लस के लिए 2 पावर 9। बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होता है, इसको फिल करने का 2 पोजीशन, इसको फिल करने का 2 वेज, इसको फिल करने का 2 वेज, तो 9 11 को फिल करने का कितना होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मेथड से। सो 2 into 2 into 2 into up to 9, 2 power 9, 2 power 9 equals to what? 5 1 12, 5 1 12. So answer is D. D is the correct answer. Okay. So this is the last question for this exercise. Now proceed to new discussion, है ना? क्या है इसमें नेक्स्ट ऑप्शन? Matrix addition of matrix, operation on matrix. So very important part of multiplication of matrix by matrix. So here operation on matrix means addition of 2 matrix, subtraction of 2 matrix, addition of a matrix by a scalar and addition of matrix to matrix. Matrix से matrix को multiply करना. So very simple way up to एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। बहुत सिंपल टेक्निक है मल्टीप्लाई करना, है ना? बट मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर सी, सपोज वी आर हैविंग मैट्रिक्स A equals to Aij m by n and another matrix B, इन जनरल लिख रहा हूं, है ना, Ij m by n। देखो दोनों के लिए यहां भी Ij लिया, यहां भी Ij लिया, m by n मींस बोथ मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर। एडिशन अगर करना है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऐड करना है, दैट इज एडिशन इज डिफाइंड इफ टू मैट्रिक्स आर हैविंग सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होगा तो भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं ना। जैसे सपोज A equals to 1 2 0 5 and B equals to 1 2 3 4 5 0। So can we add this? इसको ऐड कर सकते हैं क्या दोनों को? हेलो, नो सर, बिकॉज ये 2 by 2 है, ये 2 by 3 है। सो वी रिक्वायर सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो अगर ऑर्डर सेम ले लेंगे तो ऐड हो जाएगा। और एडिशन का रूल क्या है? एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स इज, ये थर्ड मैट्रिक्स वी गेटिंग by adding corresponding elements of two matrix। दोनों मैट्रिक्स के corresponding element को ऐड करने से मिलेगा। मींस A और B को ऐड करोगे तो एक थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होना है? थर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू Aij प्लस Bij, दिस m by n। corresponding elements are adding। जैसे यहां पर ऐड करेंगे ना तो A प्लस B इज थर्ड मैट्रिक्स इज व्हाट? क्या करना है इसमें ऐड करने के लिए? 1 plus 1, ये पोजीशन वाइज ऐड करना पड़ता है, पोजीशन वाइज। सो 1 plus 1, यहाँ पर क्या होगा? 2 plus 2 and 0 plus 4 and 5 plus 5। सो दिस इज ए न्यू मैट्रिक्स, दिस इज ए न्यू मैट्रिक्स। ये 2 4 4 2 4 4 10, दिस इज न्यू मैट्रिक्स, दिस इज एडिशन। ये एडिशन है दो मैट्रिक्स का। इसमें क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। वी कैन ऐड एंड गेट अ थर्ड मैट्रिक्स। ओके, रियल मैट्रिक्स है तो रियल नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा। तो इन जनरल फॉर्म वी कैन राइट लाइक दिस, ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर है? नाउ सबट्रैक्शन, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स जैसे हम लोग नंबर पढ़ते हैं, वी रीड अबाउट नंबर्स।
So numbers, negative of numbers is, how can we write? Suppose 2 लिखा है तो इसका negative 2 है, 3 लिखा है तो इसका negative 3 है. Similarly, यदि constant लिखा है ये तो इसका negative ये. Here matrix, negative of matrix is also denoted by minus. Suppose we have the matrix A, m by n order matrix. So for defining negative of a matrix, order may be anything. If this is a matrix, then negative. This is A. Is what? Negative of a matrix. Negative of a matrix A. It is what? Minus A equals to m by n. Means जितने सारे एलिमेंट्स है, each element is multiplied by minus sign. मतलब नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इलेमेंट मैट्रिक्स के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स है, each element will be multiplied by minus sign only. So this is negative of a matrix. It is also additive inverse. जैसे बाइनरी ऑपरेशन पढ़े हैं ना, सब कुछ यहाँ फॉलो होता है. ओके. And zero matrix, you know, zero matrix we can write of any order zero matrix. That is all elements will have zero. Okay. तो जीरो मैट्रिक्स अगर लिखे तो ये जीरो नंबर ले ले, m by n मीन्स each element are zero, m by n, m रो n कॉलम लिख देना है, उसमें जीरो लिख देना है. That is जीरो मैट्रिक्स. ये एडिटिव इनवर्स है, ये सॉरी ये एडिटिव आइडेंटिटी है और ये एडिटिव इनवर्स. एंड एडिशन पढ़ लिया, कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं. रिक्वायरमेंट क्या है? ऑर्डर शुड बी सेम. Then third matrix, that is the addition of corresponding elements of two matrices. Addition. Negative is this. Zero matrix is this. Okay. And difference of two matrices, you can define difference of two matrices. That is, one matrix is A and another matrix is B. Difference of these two matrices is denoted by A minus B. Difference of two matrices A and B should have same order. Order same होना चाहिए. Order क्या होना चाहिए? Same. B I J M by N. Difference के लिए भी order same होना चाहिए. और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A plus minus B. That is what? Addition of a matrix and negative of other matrix. दोनों को ऐड कर देना है इस टाइप से. Also it can be defined like this: Aij minus Bij m by n. Means corresponding elements को subtract करना है. First element जो है वो first में रहेगा, second जो है second में रहेगा. This is negative. So negative can also be defined as a some addition of two matrix. First matrix added to negative of second matrix. And also this is the general form. This is addition, subtraction, negative of a matrix and zero matrix. Now we can see that matrix addition is binary operation. Why matrix addition is binary operation? Tell me. सेट के दो एलिमेंट को ऑपरेट करके जो न्यू एलिमेंट मिलता है वो भी सेट का होना चाहिए. सो टू मैट्रिक्स आर एडेड. ये क्या? दो मैट्रिक्स को ऐड करने से एक थर्ड मैट्रिक्स मिलता है. सो ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? इज इट बाइनरी ऑपरेशन और नॉट? ये जो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट ऑन द सेट ऑफ मैट्रिक्स. अगर सेट ऑफ मैट्रिक्स लिया जाए तो दो मैट्रिक्स को ऐड करे तो तीसरा मैट्रिक्स मिलता है. और उसी सेट का रियल नंबर का होगा तो सेट एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज एन बाइनरी ऑपरेशन. एंड कम्यूटेटिविटी होल्ड. कम्यूटेटिविटी क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन जब लेते हैं तो कम्यूटेटिविटी. व्हाट इज कम्यूटेटिविटी? टेल मी एनीवन. कम्यूटेटिविटी मींस क्या होना है? बी स्टार ए. सो यहां भी इफ सेट मैट्रिक्स हैविंग रियल एलिमेंट्स देन वी कैन प्रूव ना. वेरी सिंपल, यू कैन प्रूव इट. ए बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. क्यों होना है? बिकॉज ए प्लस बी मतलब क्या होता है? ए आई जे प्लस बी आई जे. दीज आर द नंबर्स, रियल नंबर्स. रियल नंबर का एडिशन जो है कम्यूटेटिव होता है.
ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, Bij प्लस Aij, ये both are same because the numbers can be written as a reverse order, क्योंकि numbers जो है वो commutative होता है. So addition is commutative. Okay, addition is also associative. Associative law क्या होता है? A plus B plus C, A plus B plus C, ये if A B C summation with addition is defined, three matrices are there, एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है, दोनों को ऐड करो वो उसी ऑर्डर का मिलेगा. ये इससे अगर C से कंपेटिबल है फॉर एडिशन, मतलब एडिशन के लिए कंपेटिबल होने का मतलब एडिशन के लिए डिफाइन है, मतलब ऑर्डर सेम है. सो इसका एडिशन और इसका एडिशन, फर्स्ट ऐड दिस टू एंड देन दिस, फर्स्ट ऐड B and C and then add to A, this will give same value, that is associative also. So एडिशन कम्यूटेटिव भी है, एडिशन एसोसिएटिव भी है, बाइनरी ऑपरेशन हुआ, कम्यूटेटिव हुआ, एसोसिएटिव हुआ. एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? पहले आइडेंटिटी. व्हाट इज आइडेंटिटी? बाइनरी ऑपरेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है? ए स्टार बी इज ए बाइनरी ऑपरेशन. देन आइडेंटिटी का डेफिनेशन कैसे देते हैं? हेलो, आइडेंटिटी का डेफिनेशन याद है? आइडेंटिटी ई से डिनोट कर देते हैं. इफ ए स्टार इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट, वो किसी सेट का एलिमेंट है, तो ए को क्या बोलते थे? ई को, ई इज आइडेंटिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन. ये बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी के लिए मतलब ये होता है. अब सपोज एडिशन है और एक मैट्रिक्स है, यहां पर कौन सा मैट्रिक्स लिखे कि ये मिल जाए? टेल मी. एक मैट्रिक्स है, इसको किस मैट्रिक्स से एडिशन करें कि मैट्रिक्स खुद आए? हेलो, जीरो मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का ये होगा उसी ऑर्डर का ये आएगा, तो जीरो मैट्रिक्स. वी कैन राइट लाइक दिस, दैट इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज गिवन मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी. ये एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो मैट्रिक्स. एंड एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ये अगर आइडेंटिटी है, सो ए का इनवर्स बी है, दैट मींस ए स्टार बी इक्वल्स टू व्हाट? यहां क्या लिखते हैं? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. ये मींस एनी अदर सेट, यू कैन सपोज ए एंड एनीथिंग. ओके, बिकॉज़ कंफ्यूज हो रहा है ना ये से. सो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए. यहां पर क्या लिखा है? अगर बी इनवर्स है ए का, यहां क्या लिखना पड़ेगा? ये तो इनवर्स, ये तो आइडेंटिटी के लिए ऐसा होता है. और यहां पर अगर a, if b is the inverse, b is inverse of a, then a star b equals to b star a. यहां पर क्या लिखना चाहिए? हेलो, ये b is inverse of a, then b inverse है a का, then a star b equals to, यहां पर क्या होता है? हेलो नमन, अभिजीत, anyone tell me if b is the inverse of a, then a star b equals to what? नहीं पता है तो बताओ, नहीं मालूम ये तो बोल दो. हेलो, यहां पर ई होता है ना, बिकॉज ये b इनवर्स है a का और स्टार के रेस्पेक्ट में ये ई आइडेंटिटी है, तो यहां पर ई होना है. दिस टाइप ऑफ डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर. ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो ऐसी क्वेश्चन आता है, नहीं तो फिर वही आंख बंद करके गोला मार के आ जाओगे, बस पास हुआ तो पास, नंबर मिला तो मिला, ऐसे होना. इस टाइप से ये डिस्कशन कर करके डीपली स्टडी करना पड़ेगा. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही होता है. सिचुएशन सही नहीं रहा तो टर्न 2 भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है, नहीं तो वहां थ्योरेटिकल होगा. फिर ये हुआ. सो यहां पर अगर एक मैट्रिक्स ये है, सो इस
इसके साथ क्या ऐड करें कि क्या आ जाए, यही तो है ना, और क्या। एडिशन इज ऑपरेशन, ये ऑपरेशन की जगह एडिशन है, ए का इनवर्स यहाँ लिखना है ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, इनवर्स आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स आ जाए। इसके लिए यहाँ पर क्या लिखे इस जगह पे, यहाँ पर क्या लिखना है, जीरो मैट्रिक्स आना पड़ेगा। ए का नेगेटिव लिखना है ना, नेगेटिव में मैट्रिक्स पढ़ लिया ना हमने, इसमें जो एलिमेंट है हर एलिमेंट में नेगेटिव लगा के बनाओगे तो ये मैट्रिक्स बनता है। अब जब दोनों को ऐड करोगे तो जीरो जीरो आ जाएगा हर जगह पे, तो ये नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए। सो ए का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए, एडिटिव आइडेंटिटी ये एडिशन के लिए हुआ है। एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स exist, zero is additive inverse, order is same as the given matrix, and additive, if A is the given matrix then negative of A is additive inverse, so all are existing, addition of matrix के लिए। okay, इसके बाद ना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो तो एडिशन हो गया, एडिशन इज सिंपल, जस्ट इसमें एक्सरसाइज में एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया है, सभी क्वेश्चन को इजी है, फिर भी राइटिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, पूरा लिख के करना है सॉल्व। ओके, जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है we will solve only 2-3 questions and remaining question you have to solve because there are many questions, only simple addition, add करना है बस और कुछ नहीं। okay, this is addition। now matrix, multiplication of a matrix by a scalar, that is A is matrix, suppose जैसे ये general matrix है, ये Ij m by n of maybe any order। first of all सपोज कोई मैट्रिक्स है और इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मींस ये एनी रियल नंबर, इन रियल नंबर केस। सो सपोज k इज एन स्केलर, k इज ए स्केलर, जैसे एक मैट्रिक्स है सपोज 1 0 2 3, दिस इज ए मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स, दिस इज a equals to this is a equals to, now 2a, that is 2 is a scalar, 2 is multiplied to a, 2 is multiplied to a means 1 0 2 3, you have to multiply this 2 to each element, that is क्या करना है, इस 2 का सभी में मल्टीप्लाई करना है, सब में। so 2 into 1 2, 2 into 0 0, 2 into 2 4, 2 into 3 6, this is the multiplication, 2a means scalar is multiplied to each element, that is ka equals to what, k is multiplied to each element, that is k ai, this is multiplication of matrix by a scalar। and also suppose k is scalar and a plus b is addition, this k is scalar multiplied to addition, so k will be multiplied to each matrix, clear? now suppose we have two scalars are there, l plus m, two scalar separately added, and this is again a scalar quantity, so this scalar quantity multiplied to a matrix A, this gives what, ये simple multiplication is like ये, so this is the rule for multiplying scalars to matrix, so this is matrix multiplication by a scalar, simple,
only constant value will be multiplied to each element of the matrix, and when two matrices are added then you can distribute it similarly like this. ओके ये तो सिंपल है. इसके बाद जो आता है अभी जब का जो प्रोसेस बताऊंगा, अभी का जो प्रोसेस बताने वाला हूं ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस. एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल कंफ्यूज विथ मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन से कंफ्यूज हो जाता है कैसे करना है. मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. ओके सो अभी तक जो बता रहे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर में भी एनीथिंग. ओके बट हियर सपोज we are having a matrix A like this, A I J order m by n, and B is a matrix B J K n by P. ये ऑर्डर लिया. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड ओनली व्हेन, जैसे जब मैट्रिक्स लिखते हैं ना, जैसे एक मैट्रिक्स लिखा कौन x, दूसरा मैट्रिक्स क्या लिखा y. इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. सो टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, पहले वाले का ऑर्डर होना चाहिए जो भी ऑर्डर होगा, दूसरे वाले का जो भी ऑर्डर होगा. फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो शुड बी इक्वल. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मैट्रिक्स इज x एंड देन सेकेंड मैट्रिक्स इज y. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम, बिकॉज ये जो लिखते हैं यहाँ पर दो एलिमेंट ऐसे क्रॉस करके, यहाँ पर जो दो एलिमेंट लिखते हैं और क्रॉस करके लिखते हैं. फर्स्ट इज डिनोटेड फॉर रो, सेकेंड इज डिनोटेड फॉर कॉलम. फर्स्ट इज फॉर रो, सेकेंड इज फॉर कॉलम. सो हियर दिस मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का इन ऑर्डर दिस ऑर्डरली. ये पहले x है फिर y है. सो x का जो कॉलम है और y का जो रो है दोनों इक्वल होना चाहिए. देन दिस टू मैट्रिक्स विल बी कॉम्पेटिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. मीन्स मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड, xy विल बी डिफाइंड, xy विल बी डिफाइंड. दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा. ओके ये ऐसा होना पड़ेगा. क्लियर है. सो इसीलिए यहां पर क्या लिखा, I J M, I वेरी फ्रॉम 1 to m, J वेरी फ्रॉम 1 to n. ये n है, यहाँ j है, तो इसलिए यहां भी j लिखा फॉर कॉम्पेटिबिलिटी. अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ठीक है. ये j n एंड k वेरी फ्रॉम 1 to p. इफ दिस आर बी टू मैट्रिक्स then multiplication can be defined. Compatibility के लिए क्या है, number of columns in first matrix and number of rows in second matrix should be equal. Then C is another matrix, means multiplication. इसका multiplication जो होगा C A B, C से डिनोट कर दे रहा हूँ. और ये नोटेशन क्या आ जाएगा, एलिमेंट आएगा और इसमें I and K, M by P मैट्रिक्स. क्लियर हुआ. ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो जनरल एलिमेंट बनेगा दैट इज सी आई के. ये जो जे वाला पोर्शन खत्म. वेयर सी आई जे इज इक्वल टू आई के इक्वल सी आई के मीन्स जो थर्ड मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट है, उसका जो जनरल एलिमेंट है उसमें I एंड K, बिकॉज m by P ऑर्डर का बनने वाला है. और इसमें कैसे निकालते हैं, सी I दैट इज नंबर ऑफ रो फ्रॉम फर्स्ट मैट्रिक्स एंड K कॉलम फ्रॉम सेकंड मैट्रिक्स. फॉर ईच रो एंड कॉलम यू हैव टू राइट. सो ये क्या हो जाएगा, फॉर ईच रो एंड कॉलम मीन्स लाइक दिस. सपोज ये दो मैट्रिक्स है, दिस 3 by 3 and this is This is 3 by 3
this is 3/2. Clear? This is x, this is y. Tell me, these two are compatible for multiplication or not? For multiplication के दोनों compatible है कि नहीं? Hello? ये दोनों मैट्रिक्स बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर कितना है 3, नंबर ऑफ रो यहाँ पर कितना है 3, वही तो कंडीशन जरूरी है। इसकी इस 3 और 2 के लिए कुछ नहीं बोलना है, कंपेटेबल है। अब क्या करना है, वो जो थर्ड मैट्रिक्स है, जो प्रोडक्ट होने वाला है, जो एक मैट्रिक्स बनने वाला है, कितने ऑर्डर का बनेगा? प्रोडक्ट करेंगे तो 3/2 का बनना है, 3/2 का बनना है। ओके, 3/2 मीन्स ऐसा, ये 3/2 ऐसा बनना है, 3/2 का बनना है। इसका प्रोडक्ट जो है 3/2 का बनेगा। अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट मीन्स व्हाट 1 1, यहां पर 1 1, यहां पर 1 1, 1 1 मीन्स व्हाट, पहला वाला कहां से आएगा? यहां से, दूसरा यहां से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस टाइप से। क्लियर है ना? तो ये इस एलिमेंट कैसे लिखा जाता है इसमें? दिस इज इक्वल्स टू, इसमें कॉमन क्या रहता है? फर्स्ट रो लेना है और यहां से फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो ये रो लेना है, ये कॉलम लेना है, रो लेना है, ये कॉलम लेना है, वन टाइम कंप्लीट करना है। दैट मीन्स एक बार ये रो लेना है और ये कॉलम लेना है, एक बार ये रो लेना है, ये कॉलम लेना है, फर्स्ट कॉलम, ये रो लेना है, फर्स्ट कॉलम, बिकॉज ये एलिमेंट बनाना है। दैट मीन्स व्हाट, यहां पर क्या बनना है? C11, C11, C12, C13, C111, सब में 1 ले, सब में 1 है, ठीक है ना? और ये कॉलम है, ये क्या है? दूसरा 1 2 3, 1 2 3 क्या काउंट हो रहा है? 1 2 3, ये C1, C2, C3, ये इस जगह डिनोट कर रहा है। बट यहां पर जब बना रहा है एलिमेंट, तो फर्स्ट दिस, जब यहां पर बनेगा फर्स्ट, ये सेकेंड रो दिस, जो ये बनेगा, फिर ये इस टाइप से। मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? ये एलिमेंट टू एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट टू एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट टू एलिमेंट, मीन्स ये वाला एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, प्लस होगा, फिर ये वाले का इससे होगा, प्लस होगा, मीन्स ये वाला लेना है और ये वाला लेना है। ये क्या होना है? पहले वाले का इसमें मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाले का इसमें मल्टीप्लिकेशन, तीसरे वाले का इसमें मल्टीप्लिकेशन, और सबको ऐड कर देना है, तो ये बनेगा, ये पहला एलिमेंट बनेगा। सेम प्रोसेस वही करना है, ये फर्स्ट रो के साथ, और ये वाला, ये यहां आएगा, फिर एडिशन, फिर ये इसके साथ, फिर ये आएगा। क्लियर है? ये गलत लिखा हूं यहां पर, ये 1 1 नहीं करते ना, ये क्या होता है यहां पर 1 1 2 1 2 2, ये बताना था। ओके, ठीक है। अगेन रिपीट दिस प्रोसेस with this row with this column, with this row with this column, with this row with this column, यहाँ, फिर ये क्या बन जाएगा? सेकेंड टाइम ना, सेकेंड टाइम में क्या बनेगा? पहले रो पहला, दूसरा कॉलम सेकेंड, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये बनेगा। सो मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कैसे करना है? यहां पर इसको लिखे तो अभी क्या लिखे? यहां पर सम किया जाता है, जो जनरल एलिमेंट है वो सम होता है। क्या होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर सम होगा। सम कौन कर रहा है? सम j इक्वल्स टू 1 2, j जो है ना यहां तक सम होता है, और एलिमेंट क्या आना है? पहले वाले का a i j, दूसरे वाले का b j k। सम करेंगे तो ये होगा, j वाला पोर्शन जो है गायब हो जाएगा, j 1 to n होता है। दिस इज जनरल नोटेशन।
प्रोडक्ट करने का रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल मेन ऐसा है कि जैसे ये बनाया मैट्रिक्स, सो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जितने सारे रो है उसके साथ कॉलम को बार बार लाना है, वही पोजीशन पे लिखना है। सिमिलरली यहाँ पर कॉलम है तो फिर इसके साथ बना के यहाँ लिखना है, वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा। वही प्रोसेस है यहाँ पर, और ये समेशन है। दिस इज सी मीन्स अगर यहाँ पर सी आई के इन जनरल अगर लिखते हैं तो जो थर्ड मैट्रिक्स प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो जनरल एलिमेंट है उसका समेशन ये नोटेशन बनता है, जे पे सम होता है। बिकॉज जे पे सम वाई, ये जे है नंबर ऑफ कॉलम, ये फर्स्ट में जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स में 1 2 3 टाइम्स सम हो रहा है। इस केस में प्रोडक्ट, इस केस में प्रोडक्ट, इस केस में प्रोडक्ट, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 3, तो सम हो रहा है नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस जे, सो इसीलिए जे पे सम हो रहा है। तो ये जनरल एलिमेंट है। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक क्या है, फिगर दिमाग में याद रखना है। कैसे, पहले वाले मैट्रिक्स में ए रो या फर्स्ट कॉलम, सभी रो के साथ फर्स्ट कॉलम का एक बार कर लेना है और ऐसे करके लिख देना है। फिर यही प्रोसेस सेकंड कॉलम के साथ भी करना है। फिर क्या करना है उसमें, फिर इसके साथ सेकंड कॉलम, इसके साथ सेकंड कॉलम, इसके साथ सेकंड कॉलम लेके फिर एलिमेंट बना के रख देना है। दिस इज द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, रो बाय कॉलम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स। ओके, सो यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल सा। सपोज, because this is very important part related to matrix. Suppose we are having matrix like 2 3 1 5 0 1. This is 3 by 2 and यहां पर एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं 3 by 3 ऑर्डर का। बनेगा क्या 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये प्रोडक्ट अगर यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम ले ले अभी 3 by 3 का, सो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटेबल होगा। हेलो तो लाउडली बोलो, जल्दी जोर से बोलो, क्या ये प्रोडक्ट कंपेटेबल है। हेलो, ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी है, सब मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपेटेबल है क्या, अगर इस ऑर्डर का लिया जाए तो। हेलो, देखो समझना जरूरी है ना, ये दो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। अभी मैंने एलिमेंट नहीं लिखा, ऑर्डर लिखा हूं, या इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर है, क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। हेलो, मल्टीप्लाई का ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज कोई यस बोल रहे, कोई नो बोल रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, किसमें, फर्स्ट मैट्रिक्स में। क्या होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी मतलब क्या है, पहले में कॉलम दूसरे में रो सेम होना चाहिए। दूसरे में रो तो 3 लिख दिया, कहां सेम है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पहले ये रखो फिर बी रखो, मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम और फर्स्ट में सेकंड में नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। बट यहां तो 3 लिखा हूं, नहीं होगा ना। अगर हम इसको लिखे बी ए निकाले तो हो जाएगा, देखो बी ए निकालेंगे तो हो जाएगा ना। यहाँ 3 by 3 है और ए इधर, ए को इधर लिख दिया 3 by 2, हो जाएगा कि नहीं। यही मैट्रिक्स को अगर लिख दे, यहाँ एलिमेंट लिखा नहीं हो, अभी एलिमेंट लिख देंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो ये ए बी को अगर निकालने जाए प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा ना। ए बी को प्रोडक्ट करें, ये तो डिफाइन नहीं है, इसमें होगा कि नहीं। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ कॉलम कितना है 3 और यहाँ कॉलम रो कितना है 3, हो जाएगा। यही मैट्रिक्स तो लिखा हूं। ए बी इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ए बी डिफाइन नहीं है, बट बी ए इज डिफाइंड, डिफाइंड, बी ए डिफाइन है, ये डिफाइन है, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता। बिकॉज कॉम्पेटिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स, जब फर्स्ट मैट्रिक्स लिखते हैं उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है।
तो इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर जो है इस जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं तो भी कंफर्टेबल है। इसको नहीं देख रहे हैं अभी, इसको देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसको कंफर्टेबल बनाना है 2/1 लो, ओके हो जाएगा मल्टीप्लाई, बिकॉज ये नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रो है, सेम है। बाकी यहाँ कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ 1 होता है तो मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3/1 का मिलेगा अगर ऐसा मैट्रिक्स हुआ मल्टीप्लाई किया तो। और अगर ये 2 है सो कितने बाई 2, 3/2 का पहला लिखा जाता है और लास्ट वाला लिखा जाता है, 3/2 का मिलेगा। और यहां अगर 3 है तो ये 3/3 का मिल जाएगा। यहां अगर 4 है ये 3/4 का मिल जाएगा उस बेस पे। सो सपोज वी आर टेकिंग ओनली हियर 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कंफर्टेबल है, अब ये कंफर्टेबल है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल मींस ये न्यू मैट्रिक्स विल बी फॉर्म, एक न्यू मैट्रिक्स है, वन टाइम्स यू हैव टू राइट इट। क्या करना है, ये तो कंफर्टेबल हो गया। अब यहाँ 11 लिख लेते हैं 2/3 ना, सो 1 0 1 0 1 2 0 1 5, ओके ये लिख लिया। 5 स्मॉल नंबर लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ओके ये। सो दिस इज 3/2, दिस इज 2/3। अरे 2/3 कहाँ हुआ, ये हुआ 2/3, ओके ये 2/3। ना मल्टीप्लिकेशन होना है तो मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, रो बाय कॉलम। ये फर्स्ट रो, ये जो अब ये तो क्लियर है कि ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलना है 3/3। सी हियर लॉन्ग करके लिखना है, यहाँ पर कितने बाय कितने का ऑर्डर का मिलेगा, 3/2 है, 2/3 है, 3/3 का मिलना है, 3/3 का मिलना है, मीन्स 9 पोजीशन आएगा। यहाँ पर 9 पोजीशन आने वाला है, 9 एलिमेंट्स आने वाला है। कैसे आएगा 9 एलिमेंट्स, रो 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 3 टाइम्स है, ये फर्स्ट कॉलम के साथ 3 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो ये मिलेगा। फिर सेकेंड कॉलम के साथ फिर 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। फिर थर्ड कॉलम के साथ फिर अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट क्या होना है, फर्स्ट एलिमेंट, यहां का फर्स्ट एलिमेंट, दिस रो मल्टीप्लाइड टू दिस, दैट इज 2 into 0 plus 3 into 0. Second, 1 into 0 plus 5 into 0, 0 into 0 plus 1 into 0. ये क्या किया हमने, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, मीन्स ये 0 का इससे इंटू, ये 0 का इससे इंटू, ये दोनों का इंटू करके सम किया। सेम इसके साथ फिर इसके साथ सम किया, सेम प्रोसेस। फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब सेकंड कॉलम के साथ, ये 1 1 के साथ इसके साथ, तो 2 into 1 plus 3 into 1 इसका इसके साथ हो, फिर ये 1 5, 1 into 1 plus 5 into 1, फिर इसका थर्ड वाले के साथ 0 into 1 plus 1 into 1। सिमिलरली थर्ड कॉलम के साथ 2 into 2 plus 3 into 1, 1 into 2 plus 5 into 1, 0 into 2 plus 1 into 1. This is 3/3 मैट्रिक्स। सबको समझ में आया ना कैसे लिखा गया, इसके साथ ये तीनों रो के साथ ये फर्स्ट कॉलम को 3 बार लेना है इधर, फिर इन्हीं रो के साथ सेकंड कॉलम को लेना है, फिर इन्हीं रो के साथ थर्ड कॉलम के साथ लेना है। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, 3/2 2/3, तो मिलना क्या 3/3। नाउ कैलकुलेट इट एंड राइट इट। तो मैट्रिक्स हो गया ये 3/3 का मैट्रिक्स। ये क्या हुआ 0 0 0, ये सब 0 0 आ गया, और फिर अगले इसमें क्या है 2 3 5 6 1, 5 6 1, और 4 3 7 and 3 2 plus 5 7 and 1. This is 3/3 मैट्रिक्स। सो इट्स मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये आ गया। ओके 0 0 0 5 6 1 7 7 1।
0 0 0 5 6 1 7 7 1. This is 3 by 3 matrix. ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. ये 3 by 2 था, 2 by 3 था, मल्टीप्लाई हो गई. क्लियर है? बट वी कैन सी दैट इस केस में रिवर्स ऑर्डर चलेगा क्या? रिवर्स ऑर्डर मीन्स बी ए निकल सकता है. बी ए इज कंपेटिबल और नॉट? इस मैट्रिक्स से इन दोनों के लिए बी ए कंपेटिबल है? बी ए मीन्स कैन वी फाइंड बी ए? बी में नंबर ऑफ कॉलम 3 है. क्यों नहीं होगा? हो जाएगा ना. होना है कि नहीं होना है बी ए भी कंपेटिबल? हेलो, होना है ना भाई. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए तो ऐसा एग्जांपल लिया ना. सो बी ए हो जाएगा कंपेटिबल. बिकॉज क्या है बी ए में? क्या है बी ए में है 2 by 3 और ए में क्या है 3 by 2. सो यहां पर तो ये दोनों कॉमन है. नंबर ऑफ, ये पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो सेम है. सो हो जाएगा. बट इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 2 by 2 का मिलेगा. 2 by 2 का, वो 3 by 3 का मिला था, ये क्या मिलेगा? 2 by 2 का. क्लियर है? तो यहाँ कितना चीज क्या क्या दिखने को मिल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन कंपेटिबल होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो ऑर्डरली शुड बी इक्वल एंड ऑर्डर ये मिलेगा. और ऐसा हो सकता है कि ये भी कंपेटिबल है बट बी ए नॉट कंपेटिबल, ये भी हो सकता है. बट यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर अगर हमने 1 ले ले तो ये तो कंपेटिबल हो जाएगा, बट ये नहीं होगा कंपेटिबल. वो तो इसको लेने पे डिपेंड किया ना. सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है फॉर, ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, बोथ फॉर डिफाइनिंग बोथ क्या होना चाहिए. याद दिख रहा है? देखो, बोथ मीन्स ए बी एंड बी ए, इन दोनों को कंपेटिबल होना है, दोनों को डिफाइन होना है. इसके लिए क्या होना है? पहले वाले का रो और लास्ट वाले का कॉलम सेम होना चाहिए, और फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम होना चाहिए. मतलब देखो यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 3 है, तभी दोनों डिफाइन हो रहा है. बट यहाँ पर अगर हम 1 ले ले, 4 ले ले तो नहीं होगा दोनों कंपेटिबल. क्लियर है ना? सो इसको समझना है. एंड इफ बोथ आर कंपेटिबल देन इक्वल होगा क्या? ऑलवेज राइट है. अगर सपोज करो दोनों कंपेटिबल है तो ऑलवेज इक्वल होना है कि नहीं होना है? हेलो, अगर ये भी कंपेटिबल है, ये भी कंपेटिबल है, दोनों की वैल्यू निकाल ले, दोनों ऑलवेज इक्वल होगा कि नहीं? नीड नॉट नेसेसरी ना, जरूरी नहीं है ना. इसको करेंगे तो क्या होगा, एक बार 3 by 3 मिला, एक बार 2 by 2 मिलेगा, दोनों तो इक्वल नहीं है. इन जनरल नॉट इक्वल बट मे बी इक्वल. इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा बताओ? अब हम लोग बी ए निकाल लेते हैं. जैसे 2-3 मिनट टाइम है और ये देखो बी ए निकाल लेते हैं. यहाँ पर बी ए इक्वल टू क्या होना है? बी ए, बी मीन्स 0 1 2 0 1 1 एंड ए मीन्स 2 3 1 5 0 1. So its multiplication will be what? ये कितने का है? ये 3 by 2 by 3 का है, 2 by 3 का है, और ये क्या है? 3 by 2 का है. सो ऑर्डर क्या होना है? जो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 2 प्लस 1 into 1 प्लस 2 into 0, इसके साथ इसका, फिर इसके साथ इसका 0 into 2 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 1 नॉट 1 नॉट 0, ये होना है. फिर सेकंड कॉलम के साथ 0 into 3 0 into 3 प्लस 1 into 5 प्लस 2 into 1, इसके साथ सेकंड कॉलम, फिर इसके साथ सेकंड कॉलम मीन्स 0 into 3 0 1 1 1 into 5 प्लस 1 into 1. ये मैट्रिक्स बन रहा है रो बाय कॉलम. पहले ये दोनों फिर ये दोनों. सो वैल्यू क्या आ गया इसका? ये तो 2 by 2 बन जाएगा मैट्रिक्स. सो 1 1
5 to 7 6। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना तो ये बना, दैट मीन्स ये बना, इसको सिंप्लीफाई किया तो वो बना। ओके, सो अब बताओ ए बी बी ए इक्वल है, वेदर इक्वल ए और बी और नॉट, इक्वल है क्या दोनों? हेलो, ए बी और बी ए दोनों इक्वल है? नो ना। अगर ए बी और बी ए कॉम्पिटेबल है तो भी इक्वल होना जरूरी नहीं, दैट नीड नॉट नेसेसरी ए बी एंड बी इक्वल इफ दे आर कॉम्पिटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल। और ये भी है कि ऑर्डर क्या बनता है, फर्स्ट का नंबर ऑफ रो, थर्ड का नंबर, सेकंड का नंबर ऑफ कॉलम, ये इसी ऑर्डर का न्यू मैट्रिक्स मिलता है। इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड फॉर मल्टीप्लिकेशन देन डिड नॉट बी नेसेसरी दैट दे आर इक्वल, मे बी इक्वल। इक्वल कब होगा आप मेरे को ये बता दो, तो जस्ट डिस्कस करके अब क्वेश्चन क्लास खत्म हो रहा है अभी। ये जो दोनों डिफाइन किया इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर इक्वल कर भी दे तो भी इक्वल होगा कि नहीं होगा। मतलब यहां पर दोनों का ऑर्डर अगर सेम लाना था तो क्या होना चाहिए, अगर ए बी की ऑर्डर और बी ए की ऑर्डर सेम लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर सेम लाना है। तो यहां क्या रेस्ट्रिक्शन रहेगा, यहां पर क्या कर दिया जाए, दोनों मैट्रिक्स को कैसा होना चाहिए, इफ ए बी एंड बी ए का ऑर्डर सेम होना है तो। हेलो, if the order of AB and BA, whenever AB and BA are compatible, for order should be equal of AB and BA, what will be the order of A and B separately? क्या होना चाहिए देख के बताओ ना। हेलो, अभी तो सब ज्वाइंट हो, बताओ। ये ए बी को मल्टीप्लाई किया वो बना, बी ए को मल्टीप्लाई किया ये बना, वो 3/3 का ऑर्डर का है, ये 2/2 ऑर्डर का है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों सेम ऑर्डर का आ जाए तो इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन डाल दे, इस ऑर्डर में और इस ऑर्डर में। हेलो, किसी से बोलते नहीं बन रहा है, क्यों? रिप्लाई करो ना। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए बी किया वो आया 3/3, बी ए किया 2/2, दोनों कॉम्पिटेबल था, मल्टीप्लाई भी हो गया, दोनों डिफरेंट आ गया। बट हम चाहते हैं कि इसका और इसका ऑर्डर सेम आ जाए। क्या होना चाहिए यहां पर और यहां पर? हेलो, 8:20 तक क्लास है, 8:28 हो गया है। रिप्लाई करो, क्या होना चाहिए कोई तो बताओ। एकदम इजी तो है, देख के इतना जज करते नहीं बनता है। हेलो, ये अभी क्लास ज्वाइन करके सब बैठे हुए हो। हेलो, नमन, प्रेम, रिप्लाई करो ना। ये दोनों को प्रोडक्ट किया वो बना, ये दोनों को प्रोडक्ट किया ये बना, ये बोल रहा हूं अभी दोनों का ऑर्डर सेम आ जाए तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ इन दोनों का ऑर्डर में क्या डिफरेंस कर देना चाहिए, ऐसा कुछ कर दे यहाँ पर इन दोनों का ऑर्डर कि दोनों का ऑर्डर सेम आए। क्या होना चाहिए, दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स कर दो तो ऑर्डर तो सेम आएगा ना। यहां अगर 3 इस 3 की जगह अगर 2 लिख दिया जाए तो ये भी 2/2, ये भी 2/2, और अगर इस 2 और इस 2 की जगह 3 लिख दिया जाए तो ये भी 3/3, ये भी 3/3 आएगा। दैट मीन्स ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम आने के लिए दोनों को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। If whenever A, B and B are compatible for multiplication and for same order, क्या होना चाहिए, दोनों को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। दोनों को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी ऑर्डर का बनना है मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो ए बी बी ए दोनों कॉम्पिटेबल है, तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो जाएगा और दोनों की वैल्यू निकाल। बट मैट्रिक्स इक्वल होना जरूरी नहीं है,
So matrix multiplication is very very important point for this chapter. मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. So further discussion on multiplication I will give you tomorrow. Okay. So अभी क्लास क्लोज कर रहा हूँ, है ना? Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.